गुड नाइट स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से गूगल मीट में मैं अपने छात्र छात्री के साथ हिंदी का स्पोकन क्लास कर रहे हो। आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है? चलते रहिए। शुरू हो रहा है हमारा जो क्लास है। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তো? ওকে, ঠিক আছে। বলছি আগের দিনে যে সর্বনাম হয়েছিল সেখানে কোনো রকম কোনো প্রবলেম বা কোনো সমস্যা আছে? বুঝতে পেরেছিলে পুরোটা? अगले दिन जो हुआ था सर्वनाम का अध्याय, उसमें कोई दिक्कत है? আচ্ছা, ঠিক আছে, বেশ। তাহলে শুরু করছি। তাহলে আমি শুরু করছি আজকে বিশেষণটা। ওকে, দেখো। তো বিশেষণ में क्या हो रहा है, এমনিতে আমরা বাংলায় বিশেষণ শুনতে অভ্যস্ত। পদ যখন পড়েছি আমরা ছোটবেলায়, তখন পদ পড়বার সময় আমরা জানি যে বিশেষণ একটা পদ হয়, যে পদটা সাধারণত বিশেষ্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ এগুলো বোঝায়। সেক্ষেত্রে বিশেষণ পদ হয়। আর আমরা ইংলিশেও জানি, পার্টস অফ স্পিচ করতে গিয়ে আমরা অ্যাডজেক্টিভ পড়েছি, তখন সেই অ্যাডজেক্টিভের দ্বারা আমরা বিশেষণ পদটাকে বুঝি। তো हिंदी में কিভাবে विशेषण পদটাকে বুঝবো এটা একটু দেখে নেবো আজকে। तो भाषा में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिमाण, मात्रा आदि को बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ভাষায় সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, মাত্রা ইত্যাদি যে শব্দগুলো আছে ইত্যাদি, এদের শব্দগুলোকে বোঝাবার জন্য কিছু শব্দের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সেগুলোকেই বলা হয়ে থাকে বিশেষণ পদ। যেরকম কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে প্রথমেই। চারটি উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইয়ে রঙ বিরঙ্গি তিতলি হে। ইয়ে রঙ বিরঙ্গি তিতলি হে, এটা একটা গুণ। ঠিক আছে, এটা একটা গুণ। ইয়ে রঙ বিরঙ্গি তিতলি হে মানে বিভিন্ন রকমের একটা প্রজাপতি, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে গঠিত এটা। আবার তারপরে উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি, ও বহুত লালচি হে। তো ও বহুত লালচি হে, লালচি। দেখবে যে শব্দগুলো দিয়ে আমরা ইন্ডিকেট করছি যে এটা বিশেষণ, ওটাকে সবুজ করে দেওয়া হয়েছে। সবুজ করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে যে ওই পদটাকে বোঝানো হচ্ছে বিশেষণ পদ। তো ইয়ে ও, হ্যাঁ, वो बहुत বিশেষ, ও বহুত লালচি হ্যাঁ, তো লালচি এটা কি দোষ? এটা একটা দোষ, অবশ্যই দোষ, কারণ লাল তোমার জিনিস, সেও যদি এখন কেউ গিয়ে বলে দেয় যে ওটা আমার জিনিস, ওটা আমার চাই, বা ওটা আমারই, তুমি ভুল বলছো, যেটা তোমার না ওটা আমার, তাহলে সে লালচি। কারণ সে তোমার জিনিসটা এখন তোমার ভালো লেগে গেছে, সেই জিনিসটাকে, এখন সেই জিনিসটা তোমার হলেও সে তোমার কাছ থেকে ওটা কোনো রকম ভাবে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই রকম লোকেদের লালচি বলা হয়। এবার তারপর আছে, আমরা ছবি দেখতে পেয়েছি, ছবিতে ওখানে রয়েছে চার পুস্তকে মেজ पर रखी है। তো চার পুস্তকে মেজ पर रखी है মানে চারটে বইকে একদম ডেস্কের উপর রাখা হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, বই রাখা যে জায়গা সেখানে রাখা, মেজ पर रखा है, রাখি है। তো এটা সংখ্যা। তো চার, এই যে চার, চার শব্দটাকে সবুজ করে দেওয়া হয়েছে। এটা চার দিয়ে কি বোঝায়? চার দিয়ে আমরা ডেফিনেটলি জানি চার দিয়ে সংখ্যা বোঝায়। চার দিয়ে সংখ্যা বোঝাচ্ছে। अब उसके बाद जो है वो उसमें दिया गया, इस थैली में 1 लीटर दूध है। तो इस थैली में 1 लीटर दूध है। तो 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या है? एक परिमाण है, एक परिमाण है। देखो, अभी अभी जो दूध वगैरह जो मिलता है, देखो, गाय का दूध नहीं मिलता है मैं नहीं बोलूंगा, गाय का दूध तो मिलता है, गाय का दूध लोग पीते भी है, और बात सब कुछ सही है। लेकिन अगर शहरी जगह पर हम लोग देखें देखें तो शहरी जगह पर क्या होता है, लोग अभी ये गाय का दूध खाने से ज्यादा मुझे जितना लगता है कि ये जो पैकेट प्लास्टिक का जो दूध मिलता है अमूल का और मदर डेयरी वगैरह का जो मिलता है, उससे काम चला लेते हैं। और जो चाय का दुकानदार है, वो क्या गाय का दूध ले आकर आपको चाय पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। वो क्या करता है, वो ये प्लास्टिक वाला जो पैकेट का दूध मिलता है उनको कोई दे जाता है, या फिर वो खुद को लेकर आता है और वही लोगों को चाय पिलाता है। ठीक है, तो ऐसे थैली 1 लीटर दूध है, तो ऐसे थैली में 1 लीटर दूध है, মানে 1টা লিটার
এই থলিতে দুধ আছে। এটা একটা 1 লিটার দিয়ে পরিমাণ বোঝালো। তাহলে আমরা কি দেখলাম, ऊपर लिखे वाक्य में रंग बिरंगी लालची चार तथा 1 लिटर शब्द क्रमशः तितली वो पुस्तक और दूध शब्दों की বিশেষতা बता रही है। তখন এখানে তিতলি, তিতলিটাকে আমরা বিশেষ্য পদ বলতে পারি। ওয়াহ এটাকে আমরা কিন্তু সর্বনাম পদ বলবো। আবার পুস্তক, হ্যাঁ বলছি, উপরে লিখে বাক্যে মে, উপরে যে বাক্যগুলো লিখে দেওয়া আছে, ধরো তোমাদের বোঝানোর জন্য যে সেন্টেন্স গুলো দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে একটা দিয়ে বোঝাচ্ছে গুণ, একটা দিয়ে বোঝাচ্ছে দোষ, একটা সংখ্যা, একটা পরিমাণ, সেক্ষেত্রে আমরা ওখানে কি দেখতে পাচ্ছি, উপরে লিখে বাক্যে মে, উপরে লিখে দেওয়া বাক্যগুলোতে কি আছে, রঙ বিরঙ্গি একটা শব্দ, লালচি একটা শব্দ, চার একটা শব্দ, 1 লিটার একটা শব্দ। এই শব্দগুলোয় ক্রমশ আরো কিছু শব্দ আছে, যেরকম তিতলি, ওয়াহা আছে, পুস্তক পাশে বলতে কা পুস্তক, আর আছে দুধ দীর্ঘ দুধ। তাহলে এই যে শব্দগুলো, এই শব্দগুলোর দ্বারা একটা বিশেষতা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এই যে বিশেষতাটা প্রকাশ পাচ্ছে, এখানে তিতলি, পুস্তক আর দুধটাকে আমরা বিশেষ্য পদ বলতেই পারি, আমরা সংজ্ঞা বলতে পারি। বিশেষ্য পদটা বাংলায় বলে, হিন্দিতে সংজ্ঞা বলে, তো সংজ্ঞা বলতেই পারি। বাট আমরা ওয়াহা ওটাকে কিন্তু সর্বনাম পদ বলবো। ঠিক আছে, আমরা দেখতে দিলে সেটা ওটাকে সর্বনাম পদ বলবো। अतः ये शब्द विशेषण है। তাহলে শব্দ বিশেষণ গুলো কোনগুলো হচ্ছে, রঙ বিরঙ্গি, লালচি, চার আর 1 লিটার। ঠিক আছে, এগুলো আমাদের সর্বনাম পদ। বাট কখনোই এটা গুলিয়ে ফেললে হবে না, তিতলি, পুস্তক আর দুধ, এগুলো এগুলো নয়। কারণ বিশেষণ পদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সেখানে তার আগে আমাদের বিশেষ্য, অর্থাৎ সরি, হিন্দিতে সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের কথা আসতেই হবে। কারণ এই দুটো পদ ইউজ হওয়ার পর তারপরেই কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী যে শব্দগুলো প্রয়োগ হবে সেখানে কিন্তু বিশেষণ হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু নয়। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এবারে যদি আমরা একদম ডেফিনিশনে চলে আসি, ধরে নাও তুমি কোনো পরীক্ষা দিতে গেছো, সেখানে তোমাকে ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করছে, তো সেই ডেফিনেশন তো তোমাকে দিতে হবে। এখন তোমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করছে যে विशेषण पद किसे कहलाते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम, তাহলে संज्ञा सर्वनाम দুটোই আছে, দেখো संज्ञा या सर्वनाम की বিশেষতা बताने वाले शब्द বিশেষণ कहलाते हैं। মানে সংজ্ঞা এবং সর্বনামের বিশেষতা প্রদান করে এরকম শব্দকে বিশেষণ বলা হয়। ঠিক আছে, এটা আমি এবারে এখানে বলছে जैसे सफेद कमीज, 5 गेंद, 2 किलोग्राम आम, कड़वा करेला, मोटा आदमी, जहरीला सांप, हरा पत्ता आदि, এগুলো কিছু উদাহরণ। ঠিক আছে, কিছু উদাহরণ যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা পড়লে খুব সহজে বুঝতে পারে। তো এগুলো দিয়ে দেওয়া হলো इन शब्दों में, এগুলো তোমার কাছে লেখা থাকলে তুমি এমনি বুঝতে পেরে যাবে। তো इन शब्दों में सफेद, 5, 2, कड़वा, মোটা, জেরিলা তথা হারা, এই শব্দগুলো কি, এগুলো শব্দগুলো তো সব বিশেষণ। তাহলে এই শব্দগুলো সব হয়ে গেলে এই শব্দগুলো হচ্ছে বিশেষণ। क्योंकि ये क्रमशः कमीज, गेंद, आम, करेला, आदमी, सांप तथा पत्ता शब्दों की विशेषता बता रही है। কারণ এই যে শব্দগুলো আমরা আগে বললাম, সেই শব্দগুলো এই শব্দগুলোর বিশেষতা প্রদান করছে। আর আমাদের ডেফিনেশনে, অর্থাৎ বিশেষণ পদের ডেফিনেশনে বলে দেওয়াই হয়েছে संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द বিশেষণ कहलाते हैं। ধরে নাও কোনো একটা মেয়েকে আমি বলছি, ওই মেয়েটিকে দেখতে খুব সুন্দর, তাহলে মেয়েটির নাম করে যদি তাকে দেখতে সুন্দর বলা হয়, তার মানে তার আমি গুণটাকে তুলে ধরছি, তাই না? আবার যদি কাউকে বলি যে সে পরীক্ষায় খারাপ ফল করেছে, পরীক্ষায় খারাপ ফল করাটাও কিন্তু দেখো, সবসময় কি হয়, পরীক্ষায় খুব ভালো মানে খুব আশানুরূপ ফল আমাদের হয় না। এই যে এখন যেটা তুমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো, তুমি যে পরীক্ষাগুলো দিচ্ছ, সেখানে আশানুরূপ ফলের চেয়েও যেটা দরকার, তোমার একটা জব দরকার এবং একটা বেটার পজিশন দরকার, যাতে করে সেই বেটার পজিশনে থেকে তুমি তাড়াতাড়ি ফার্স্ট চান্সেই জবটা অ্যাচিভ করতে পারো, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, তো জবটা অ্যাচিভ করতে পারো, তো এটা দরকার।
তো ওটা একটা বিষয়, তো ওটা একটা গুণ। তো সেক্ষেত্রে এখন পরীক্ষা খারাপ হওয়া না হওয়াটা কেন, এখন এবার এইসব পরীক্ষাতে কি হয়, খারাপ হলে একদম ফেল্ড, ঠিক আছে, আর পাস হলে পাস, ঠিক আছে। তো এরকম অনেকটা পরীক্ষাটার বিষয়টা হয়ে গেছে। বলছি দেখো, এখন তুমি কম্পিটিটিভ एग्जाम মধ্যে আছো, बियॉन्ड कंपटीशन एग्जाम में आছো, তাহলে आप क्या अभी कंपटीशन टाइप का जो परीक्षा होता है उसकी दौरान से गुजर रहे हो। आप उस परीक्षा में एक हुआ क्या, आप परीक्षा देने गए, परीक्षा में आपका आशानुरूप फल नहीं आया, जिससे क्या हुआ, आपका पोजीशन थोड़ा डाउन हो गया। अब डाउन हो तो गया गया, कुछ होने का संभावना था, लेकिन क्या हुआ, काट ऑफ जो था उसके आगे आके रुक गया। तो काट ऑफ अगर आगे आके रुक जाता है तो क्या आपका होगा सिलेक्शन? नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आप ऐसे परीक्षा में थोड़ा और मन लगाकर पढ़ते, या आपका प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा होता, प्रिपरेशन की बात नहीं है क्योंकि प्रिपरेशन आपने 100% दिया है, प्रिपरेशन आपने सही किया है, लेकिन क्या होता है, जो आप करके जाते हो, या फिर वो और बाकी सब लोग जो सब कुछ करके जाते, वही प्रश्न क्या आते हैं? वो तो नहीं आते। क्या वो ऐसा कभी नहीं हुआ है जो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ के चले गए, सभी से उठाकर एक पुस्तक से एक पुस्तक से एक, ऐसे करके तो नहीं देता है। हाँ, कंस होता है। हर एक परीक्षा का, किसी भी पीएससी का, किसी भी बैंक का, किसी भी परीक्षा का एक सिलेबस होता है पर्टिकुलर, उस सिलेबस के आधार पर परीक्षा में प्रश्न आता है। लेकिन आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो उसी से वही प्रश्न आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आप प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आता है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में जो आया है वो तो नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इसलिए देखते ताकि हमारा थोड़ा जो भय, डर जो लगता है इस परीक्षा में, इस परीक्षा को तो हमको क्रैक करना है, तो हमको थोड़ा देख देख कर जाना चाहिए भाई परीक्षा में पूर्व, हमसे आगे का जो प्रश्न आया था कैसे आया है, बस ऐसी ही बात है। तो आपको क्या है, अभी जो परीक्षा आपके जीवन में है, उस परीक्षा में क्रैक करने के लिए आपको तो अच्छी तरह से पढ़ना है, और आगे आपको ऐसा परीक्षा देना है कि आपको ये सोचने की जरूरत ना हो परीक्षा देने के बाद भाई आपका होगा नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप पूरी तरीके से गए, क्योंकि फेल हो जाओगे परीक्षा में। तो ये इसका कोई बात नहीं होता है। हाँ, आप जब ग्रेजुएशन तक होते थे, जो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री वगैरह करते हैं, उनको क्या होता है, थोड़ा कम नंबर भी मिल जाएगा तो बाद में वो कर लेगा, एक सेमेस्टर में कम का कोई दिक्कत नहीं, दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में वो उसको कवर कर देगा, एकदम वो सही कर देगा। लेकिन क्या है, आप जब एक परीक्षा देने जा रहे हो, अगर आपको कम मार्क्स आ गए तो आप परीक्षा में क्रैक ही नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं सिलेक्शन, वही दिक्कत है। तो इसी तरह क्या होता है, मैंने यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो गुण है, वो गुण आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर करेगा। आप पढ़ाई के ऊपर तो निर्भर करेगा, आप 100% दोगे। उसके बाद जब परीक्षा देने के लिए जाओगे, उस समय पर परीक्षा का प्रश्न कैसे आएगा, आपका माइंड सेटअप अच्छी तरह के, दिमाग को ठंडा रख के परीक्षा देना पड़ेगा। आप दे रहे हैं परीक्षा, आपका परीक्षा का रिजल्ट आया, देखा, वाह बहुत अच्छा हुआ, आपका सिलेक्शन एकदम ऊपर की तरफ है, हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। तो इंटरव्यू देने की जरूरत, हो जाएगा, ऊपर की तरफ जब होता है, इंटरव्यू होता भी है तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, इंटरव्यू भी आप क्रैक कर ही लोगे, ठीक है। तो ऐसा बात है, तो ये गुण है। तो ये गुण जो है, गुण दोष वगैरह, संख्या, परिणाम जो भी होता है आपके पास, आप किसी को पैसा देने के लिए जा रहे हो, देखो आप किसी को पैसा देने के लिए जा रहे हो तो पैसा का तो कुछ ना कुछ परिणाम, परिमाण तो होगा। आप बैंक में जब एक पैसा जमा करने के लिए जाते हो, कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेकर जाते हो, लिखना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता था। हाँ, पहले लिखना पड़ता था, जब डिपॉजिट करते थे तो पहले एक फॉर्म को फिलअप करके उसको डिपॉजिट करना पड़ता था। आप अभी बोल सकते हो कि सर अभी तो ये सब करने की जरूरत नहीं होता, अभी सब कुछ कार्ड से हो जाता है। हाँ, सही बात है, अभी सब कुछ कार्ड से हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ बैंक के बारे में मुझे मालूम नहीं है। अभी भी कुछ बैंक, जितना मालूम है, वो फॉर्म से काम चला लेते हैं।
लेकिन स्टेट बैंक की बात जब आता है वो सब कुछ कार्ड से ही करते हैं, मुझे जितना मालूम है। ठीक है, तो ये परिणाम हो गया। तो जितना बताया अभी तक वो क्लियर है, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? দেখো, ধরে নাও তুমি ব্যাংকে গেছো, आप बैंक पे गए, बैंक पे पिताजी ने आपको कहा कि भाई ये जो मेरा बचा कुचा 10 या 20 हजार रुपया है, तुम जाकर मेरे खाते में जमा कर दो। मैं सिग्नेचर कर दिया है, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, तो आपको पैसा जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा जमा ले लेगा। आपने बोला ठीक है पिताजी, मैं कर दूंगा, आप चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं है, आप पैसा बस मुझे दे दीजिए, मैं गिनती करके लेकर जाता हूँ और समय आने पर ठीक टाइम पे मैं दे दूंगा बैंक में, चिंता मत कीजिए। तो आपने पिताजी से पैसा ले लिया, आपने सही समय पर बैंक में खाते भी जमा भी कर लिया। तो ये था परिणाम हो गया। अब संख्या की बात अगर आए, आप कुछ परिणाम ऐसे भी हो गया। और संख्या की बात है तो एक सॉरी, ये संख्या की बात हुआ। आप बाजार गए, आपको घर से माताजी ने बोला भाई एक 1 किलोग्राम चीनी लेकर आना। ठीक है, तो 1 किलोग्राम चीनी लेकर आना। घर में कुछ काम फाम है, बहुत कुछ बनाना, मिठाई भी घर बनाएंगे, तो आप लेकर चले आए। तो वो जो होता है वो परिणाम होता है, परिमाण होता है। ठीक है, अगर दोस्त कोई बोलता है वो लड़का अच्छा है, लेकिन उसका जो दिक्कत है उसमें बहुत एग्रेसिवनेस है, और टीचर की बात कभी कभार नहीं सुनते हैं। तो अगर उनको लगता है आप अच्छे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे टीचर को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट तो अच्छा है, लेकिन उसमें दिक्कत जो है वो बहुत अग्रेसिव जो है, कभी कभार क्या होता है टीचर को भी नहीं सुनता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा हो जाता है कभी कभार, कुछ चीजों के वजह से ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि भाई टीचर जो है फालतू बात कर रहा है, एक টিচার বারবার বল रहा है। এখন একটা স্টুডেন্টদের একটা ইয়েই হয়ে গেছে, দেখবে যে বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশন, দেখবে একটা টপিকস পড়াচ্ছে, আহ, সে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করছে কমেন্ট সেকশনে শুধু। ঠিক আছে, তার যেটা বলছে সেটা যদি শুনে নেয় তাহলে কিন্তু সে পরবর্তীকালে সেই প্রশ্নটা সে পাবেই, পারবেই করতে। কারণ একটা যখন এই যে বড় বড় যে ইনস্টিটিউশন গুলো, তুমি যদি তোমার যে কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে, তুমি যদি আন একাডেমি ফলো করো, দেখবে ওরা খুব সুন্দর করে, but আমি আমার এর জন্য তো ফলো করি আন একাডেমি, খুব সুন্দর করে কিছু বলবার বা মাঝে মাঝে কমেন্ট করার অত কোনো প্রয়োজন নেই, যেটা বুঝতে না পারলে কমেন্ট করলে যথেষ্ট। কভার করে দেয় যে জিনিসগুলো এত জটিল জটিল জিনিস, মানে কম্পিটিটিভ এক্সামে এত জটিল জিনিস এত সুন্দর করে করায় যেন মনে হয় ছবির মতো কেউ এঁকে দিয়ে চলে গেল ছবি। ঠিক আছে, পড়ায় তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় তো চুপ করে যদি বসে ঘন্টা খানেক একটু শুনে নিয়ে যায়, তাহলে একটু টপিকসটা তোমার বোঝা হয়ে যাবে, তারপর তুমি যা খুশি করো না। এইটাই, এর বাইরে আর কিছুই নয়। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো এটাই অ্যাগ্রেসিভনেস, এই অ্যাগ্রেসিভনেস গুলো, ঠিক আছে, অ্যাগ্রেসিভনেস থাকা ভালো, অ্যাগ্রেসিভনেস থেকে অনেক ভালো জিনিস হয়। সবাই তো ইউজ করে জানতে হবে, সবাই এখন যদি বিরাট কোহলির মতো করে সেটা কি আর হবে? সেই আর কি। কারণ গুণ, গুণ ধরো, গুণ ভালোও আছে মন্দও আছে, ঠিক আছে। ভালো গুণ, ধরে নাও যে এই ছেলেটা, এই ছাত্রটা খুবই ভালো, যে সমস্ত টিচারকে রেসপেক্ট করে, সব কথা শোনে। দেখো, এরকম স্টুডেন্ট ওবিডিয়েন্ট যদি হয়ে যায়, তো ডেফিনেটলি যদি স্টুডেন্ট স্যারেরা যদি কথা শোনে, তাহলে বেশি সময় লাগে না। তো তুমি তোমার সাকসেসফুল ডেফিনেটলি হয়ে যাবে। একটু টাইম লাগে, একটু বড় কিছু করতে, যেমন তোমার শুনে খারাপ লাগলো, যেমন তুমি বলছো যে তোমার বিপিএসসি প্রিপারেশন ছিল, বাট সামনে পরীক্ষা, তোমার এমন কন্ডিশন তুমি যেতেই পারবে না। যে তুমি যেতে পারছো না তোমার বিভিন্ন কারণবশত, তাহলে তোমার এটা 1 বছর ডিলে হয়ে গেল, 1 বছর লেট হয়ে গেল। এরকম বছর লেট হয়ে গেল, তো দেন নেক্সট ইয়ার জন্য, এবার তোমাকে এই নেক্সট ইয়ারের জন্য তোমাকে এবছর একদম খুব ফুললি প্রিপেয়ার করতে হবে। কারণ তুমি একটু সময় পেলেও তোমার তোমাদের মেন্স পেপার আছে, এখানে মেন্স হয়, এই আমার জানা নেই যদিও, প্রিলিমস মেন্স।
দেন অ্যাডভান্স আর অ্যাডভান্স যে প্রিলিম যেটা তো আমাকে পাঠিয়েছে এটা হিন্দি, সেটা তো প্রিলিমস হবে নিশ্চয়ই। আমাকে যে হিন্দি সিলেবাসটা পাঠিয়েছিলে ওটা তো প্রিলিমস এর প্রিলিম। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটা যেটা দিয়েছো সেটা মেন্স এ ডেসক্রিপটিভ পেপারে আসে, আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ তা ঠিক ঠিক ঠিক, ওটা ঠিকই 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 ঠিক বলেছো, ঠিক ঠিক, ওটা ঠিকই বলেছো, কারণ ওটা ওরকম ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকে না, ওটা মেন্সই থাকে, ঠিক। হুম হুম। ইউপিএসসি কি তো অ্যাকচুয়ালি ইউপিএসসি কে ইয়ে করে চলে না, কারণ মানে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে থাকে না, ল্যাঙ্গুয়েজটা মেন্সে থাকে, ঠিক 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 বলে। হুম হুম হুম। ঠিক আছে দেখো তাহলে, এমনি যে গুণ দোষ সংখ্যা পরিমাণ বিষয়টা বুঝতে পেরেছো? হুম। আর কিছুই নয়, সংজ্ঞা বা সর্বনামের বিশ্বতা, সংজ্ঞা এবং সর্বনামে বিশেষতা মানে যাই বলুক সেখানে সংজ্ঞা সর্বনামটা চলে আসবেই, ঠিক আছে। সংজ্ঞা সর্বনামটা চলে আসবে, বিশেষতাটা বোঝাবে কি, বিশেষতা বলতে কি বোঝায়, বিশেষতা বলতে এই গুণ দোষ সংখ্যার পরিণামের বিশেষতা। পরিণাম মানে তুমি বোঝো, সংখ্যাও তুমি বোঝো, দোষও বোঝো আর গুণও বোঝো, আশা করছি বুঝতে পেরেছো। ওকে, ঠিক আছে তাহলে 59 পেজ গেল, এবার আমি একটু অন্য মানে ভেদের মধ্যে ঢুকবো, কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি বিষয়টা, শোনো একটু। দেখো संज्ञा সর্বনাম শব্দ কে সাথ, হ্যাঁ, এবার যখন সর্বনাম এবং শব্দনাম সরি সংজ্ঞা এবং সর্বনাম শব্দকে সাথ, যদি এই সমস্ত শব্দের সাথে कैसा कैसी और कितना कितनी कितने प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलते हैं वो विशेषण होते हैं। যদি এবার দেখো ভালো করে বুঝবে, প্রশ্ন করা হচ্ছে, হ্যাঁ তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যখন সংজ্ঞা এবং সর্বনাম শব্দের সঙ্গে যখন कैसा कैसी और कितना कितनी कितने এই সমস্ত প্রশ্নগুলো যখন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং ওই প্রশ্নগুলো লাগিয়ে দেওয়ার পর যে উত্তরটা পাওয়া যাবে, ধরে নাও তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে কিছু একটা, তোমাকে তুমি ইন্টারভিউ দিতে গেছো তো, এমনি নর্মাল একটা ইন্টারভিউ দিতে গেছো তো, সেক্ষেত্রে তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, যে এই প্রশ্নটা যেটা করা হচ্ছে সেই প্রশ্নটা যেই করা হয়ে যাচ্ছে, ওই ক্যাসা ক্যাসে আর কিতনি কিতনে এই শব্দগুলো জুড়ে দিয়ে, তখন সেটা সংজ্ঞা বা সর্বনাম থাকলেও সেটা কিন্তু ওই ওই শব্দগুলোর প্রয়োগ হয়ে যাওয়ার জন্য ওটা কিন্তু তখন তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা আমি যে বাক্যগুলো দিয়ে প্রশ্নটা করছি সেগুলো কি জাতীয় বাক্য, মানে এখানে হ্যাঁ বলছি শোনো, যে সংজ্ঞা সর্বনাম শব্দ, ধরো তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, ঠিক আছে, তোমাকে इंटरव्यू प्रश्न करा হচ্ছে যে अच्छा अच्छा रिंटू जी जी आप तो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं अब, तो आप जरा बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं, ऐसे प्रश्न किए, জিজ্ঞেস করতেই পারে তো, যে প্রশ্ন করছে সে করতেই পারে তুমি বাইরে চাকরি করছো, তোমার বাড়ির কথা তো তোমাকে ডেফিনেটলি জিজ্ঞেস করবে যে आपके घर में कितने लोग हैं। এবার তুমি বললে আমার বাড়িতে मेरे घर में कुल 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरा माताजी है, मेरे पिताजी हैं। अभी अब अगर उसके बाद आपको पूछेगा आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, बोलोगे हाँ मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में से हूँ। अब अगर आपको पूछ पूछ सकता है, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं आप पश्चिम बंगाल को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ रहे हो, हो सकता है क्योंकि देखो जब किसी जिला को मैंने किसी भी स्टेट को छोड़कर आप बाहर के स्टेट में जाते हो, आप प्रश्न परीक्षा में क्वालिफाई हो गए हो, इंटरव्यू तो सिर्फ एक बहाने टाइप का होता है, छोटा हर बहाने टाइप का होता है, क्योंकि आप बस आपको देखना पड़ता है कि भाई आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बोलने का तौर तरीका कैसा है। देखो आपको क्या है, ওই যে একটা কথা কাল করে না, মিথ্যে কথা বলে ঢপ ফপ দিয়ে, এই যেরকম আমাদের মুখ্যমন্ত্রীরা করছে, তুমি দেখো না আমাদের
আর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা সেখানে আমাদের, এই যে তুমি বললে তুমি সাইকোলজি পড়তে চাও, তাই তো? সাইকোলজি পড়তে চাও। তো সাইকোলজিতে একটা মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে সমস্ত কিছু, একটা মানুষ কিভাবে ভাববে, তার চিন্তাধারা কেমন হবে, বিভিন্ন রকম থিওরি আছে, এই সমস্ত গুলো তোমাকে পড়তে হবে পড়লে, ঠিক আছে? ওটাও আমরা বিএড করতে গিয়ে আমরা কিছুটা হলেও পড়েছি, ঠিক আছে? পড়েছি। ওই কিছুটা আর তুমি পড়বে, যখন তুমি সাইকোলজি নিয়ে গিয়ে পড়বে তাকে ওটা পড়তে হবে। তো এবার, তো আমি যতদূর শুনেছি বা ইন্টারভিউ দেখেছি যে ও বড় আমাদের ইউপিএসসি তে একটা পেপার থাকে মেন্সে, এথিক্স মানে নীতিবোধ, ঠিক আছে, মরাল। তো সেখানে এগুলো পড়তে হয়, কিন্তু তুমি দেখবে নর্মাল সিচুয়েশনে একটা ডিএম তো পুরো জায়গাটাকে কন্ট্রোল করে, তাই না? তো সে যদি করাপ্ট হয়ে যায়, সে যদি ঝাব্য মানে ভাবে না, তার ওই পড়াশোনাটাও এমন করা আছে, সে যদি ঝেপে নেয় সে মালামাল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কারণ কারণ এরকম দৃষ্টান্ত কত দেখতে পাওয়া গেছে, যে তারা এরকম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে ঠিকই, মানে সেগুলো খুব বিগেস্ট স্ক্যান্ডেল হয়েছে, ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু আবার যারা যারা কোনোদিন ভয় পায়নি কাউকে, কোনো বড় অফিসারকে বা কাউকে ভয় পায়নি, তাদের ট্রান্সফার অনেক জায়গায় হয়েছে, উল্টোপাল্টা জায়গায়, যেখানে হয়তো জল নেই, মশা কামড়াচ্ছে, ঠিক আছে, এরকম টাইপের। তো এই যদি উল্টোপাল্টা জায়গায় যাবে, তাকে ঘরে যেতে পারবে না সে, এরকম জাতীয় জায়গায় তোমার চলে যাবে, তো বারবার তোমাকে এক জায়গা থেকে জায়গায় ट्रांसफर করা হবে, এই যদি বিষয় যাই হোক। तो ऐसे सवाल आपको पूछे, যখনই এই ক্যাসা, ক্যাসি, और कितना, कितनी, कितने এরকম শব্দগুলোর প্রয়োগ করে তোমাকে ওখানে প্রশ্ন করা হবে, তখন এবং তার উত্তর যেটা পাওয়া যাচ্ছে তুমি তার উত্তর দেবে, ওই উত্তর দিলে ওই যে শব্দটা ওটা কিন্তু বিশেষণ হয়ে যাবে। বাহ, এর বাইরে আমি আর কিছু বলতে চাই না। বুঝতে পারলে? एकदम। तो जैसे कि सफेद गाय के साथ कैसे गाय, तो सफेद गाय के साथ कैसे गाय, अगर सफेद गाय लिखे दिया হচ্ছে, तो कैसे गाय, अगर मैं पूछूंगा भी तो आप तो बता देंगे भाई हम, मेरा तो सफेद गाय है, मेरा काला गाय नहीं, मेरे पास सफेद गाय है। ये सफेद गाय जो आप बोलोगे, उससे ही पता चल जाएगा भाई इसके पास तो सफेद गाय है, उसके पास तो काला गाय नहीं है। तो ये सफेद गाय से ही हम समझ लेंगे, ये सफेद जो शब्द है उसी से विशेषण का प्रयोग हो रहा है, ठीक है? तो প্রশ্ন কর উত্তর আয়েগা। এই প্রশ্ন করলে তোমার কাছ থেকে একটা উত্তর পাওয়া যাবে, সেটা কি সফেদ, ঠিক আছে? সফেদটা উত্তর পাওয়া গেল, এই সফেদ যে উত্তরটা পাওয়া গেল, এইটাই কিন্তু বিশেষণ, এইটাই বিশেষণ। আবার ধরো তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে 10 लड़कों के साथ कितने लड़के, আচ্ছা 10 लड़कों के साथ, এটা একটা শব্দ, ঠিক আছে, এটা একটা বাক্য, 10 लड़कों के साथ, आप विद्यालय जा रहे हो 10 लड़कों के साथ, आपको किसी ने प्रश्न किया कितने लड़के के साथ, तो कितने लड़कों के साथ जब आपको कोई प्रश्न पूछेगा, तब उसका उत्तर क्या होगा? 10 लड़कों के साथ। 10 लड़कों के साथ आप जा रहे हो, तो 10 लड़कों के साथ जब आप जा रहे हो, आपको जब प्रश्न किया जा रहा है, तो आप उसका उत्तर दे पा रहे हो? क्या उत्तर दे रहे हो आप? उसका उत्तर दे रहे हो भाई 10। तो प्रश्न करने पर उत्तर आ भी रहा है, जिसका उत्तर हो रहा है दा दंत से 10। तो वही जो 10 हुआ और पिछले में जो सफेद हुआ, वही दोनों जो शब्द है, वही दोनों शब्द को हम बोलेंगे विशेषण पद, ठीक है? ओके चलो। अब देखो कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले यही शब्द विशेषण है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। ऊपर दिए गए उदाहरण में से कमीज, गेंद, आम, करेला, आदमी, सांप तथा पत्ता शब्द एगुलो सभी विशेष्य, ठीक है, ये सब कुछ विशेष। कभी कभी सर्वनाम शब्द भी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसी जगह पर सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे कि सर्वनामिक विशेषता, जैसे कि आप देख रहे हो कि
ये जो बोले जा रहे कमीज, गेंद, आम, करेला, आदमी, सांप, पत्ता, ये सब कुछ तो विशेष्य है। लेकिन कभी कभार क्या है, विशेष्य पद के साथ भी सर्वनाम पद का भी जोड़कर उसको भी विशेषण बता दिया जाता है। लेकिन ऐसे जगह पर क्या होता है, सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि एक वाक्य है, ये कंप्यूटर मेरा है, वो लैपटॉप पापा जी का है। तो ये कंप्यूटर मेरा है, ये वो लैपटॉप पापा जी का है, वो बाहा। तो ये क्या है, सार्वनामिक है, सार्वनामिक विशेषण। तो ये कंप्यूटर मेरा है, वो लैपटॉप पापा जी का है, तो ये और वो, ठीक है, और सर्वनाम हो, और ये सर्वनाम हो गया, ये और वो। बुझते पारले? ओके। अब देखो, हम जो बताएंगे अभी, अभी हम विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण का भेद का मतलब क्या है, विशेषण है जे प्रकार भेद। ठीक है, चल प्रकार भेद को देखो। अब विशेषण में चार प्रकार के होते हैं। अगले दिन हम लोगों ने सर्वनाम को देखा छह प्रकार। अभी आज ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, आज चार भेद है, चार भेद। ठीक है, विशेषण में चार प्रकार के होते हैं, মানে বিশেষণ চার প্রকার হয়। কিরকম? ছকের সাথে করে দেওয়া আছে, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब देखो, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, उसका पहले ही उदाहरण दिया जा रहा है। पहले है, पीला फूल बहुत सुंदर है, राघव आलसी लड़का है। तो पीला फल, पीला सॉरी पीला फूल बहुत सुंदर है, तो पीला और सुंदर। अब राघव आलसी लड़का है, आलसी। तो इन वाक्य में पीला व सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहे हैं, तो आलसी शब्द राघव का दोष बता रहे हैं। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो क्या हो गया, तो इन वाक्य में पीला व सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहे हैं, तो आलसी शब्द राघव का दोष बता रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, तथा जस शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, तो इसका अगर हमको डेफिनेशन पूछेगा, भाई गुणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं, भाई गुणवाचक विशेषण किसको कहलाते हैं, किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो क्या, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बुझते পারলে? তো कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण শব্দ है, কিছু অত্যন্ত মানে প্রসিদ্ধ রকমের যে গুণবাচক শব্দগুলো, সেগুলো কিরকম আমি বলে দিচ্ছি। গুণ, ধরো গুণ দোষ, কারোর গুণ এবং দোষ বিচার করা হবে, সেক্ষেত্রে কিরকম ব্যবহার করা হবে। भला, बूढ़ा, अच्छा, झूठा, उधार, सुंदर। तो इस तरीके का जो ये शब्द है, मैंने बोला भला, बूढ़ा, अच्छा, झूठा, उधार, सुंदर, ये सब कुछ गुण और दोष के आधार पर आएगा। अगर किसी भी जगह पर हमको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि गुण या दोष समझ जा रहा है, तो इस जगह पर हमको ये होगा, ठीक है, ये शब्द होगा। अगर किसी भी जगह पर हमको लग रहा है कि ये रंग है, रंग बताया जा रहा है, जैसे कि लाल, काला, पीला, चमकीला, ये सब कुछ रंग बता रहे हैं ना, ये सब कुछ रंग है। तो रंग जब बताए जा रहे हैं, तब जाकर क्या होगा, रंग के दौरान, तो रंग तो रंग है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में है। अब दशा या अवस्था, कंडीशन, ओके, अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का, ये सब कुछ कंडीशन है। तो ये दशावस्था, दशा आ गया। ठीक है, तो इसी दौरान इसका क्या होगा, दशावस्था आ गया। दशावस्था बहुत अच्छा, अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का। ठीक है। अब आकार के बारे में अगर हम बात करें, बड़ा, छोटा, चौड़ा, तिकोना, मोटा, ये सब कुछ गुणवाचक विशेषण में आता है। तो इस तरीके का गुणवाचक विशेषण होता है। बोलो, यहाँ तक सही है? বুঝতে পারলে এখন পর্যন্ত? ঠিক আছে, এবার আমরা নেক্সট আইটেম, মানে নেক্সট যে বিভাগ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ সম্পর্কে বলবো। দেখো, সংখ্যা
আমাদের প্রথমে আমরা বুঝতে পারছি যে আরে তাহলে এখানে সংখ্যা আছে, এখানে নিশ্চিত সংখ্যা সম্বন্ধে বলবেন। হ্যাঁ, সংখ্যা সম্বন্ধে বলবে। এখানে কি বলছে, इस कतार में 10 विद्यार्थी खड़े हैं। इस कतार में 10 विद्यार्थी खड़े মানে এই যে লাইনটা দেওয়া আছে, এই লাইনে 10 জন বিদ্যার্থী দাঁড়িয়ে আছে। तो इस कतार में 10, अब 10, ये जो 10 बोला है, दाद अंत्य 10, इस 10 बोलने से, ये 10 से ही समझा जाता है भाई। और अब ठीक है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर तो 10 विद्यार्थी खड़े हैं, 10 है। अब मेज पर 4 केले रखे हैं। तो मेज पर जो डेस्क है ना, उसके ऊपर पर 4 केले रखे हुए हैं, तो 4 है, 4। तो इन वाक्य में 10 तथा 4 शब्द क्रमशः विद्यार्थी तथा केले की संख्या के बारे में बता रहे हैं। তো এখানে কি হলো, এই যে বাক্যগুলো আমরা বললাম, इस कतार में 10 विद्यार्थी खड़े हैं, এই লাইনে 10 জন বিদ্যার্থী দাঁড়িয়ে আছে, আর মেজ पे 4 কেলে রাখে है। তো এখানে যে মাটিটা আছে তোমার, যে সরি ডেস্কটা আছে, ওই ডেস্কটা কি আছে, ডেস্কে 4টে কলা রাখা আছে। তো এখানে আমরা কি इन वाक्य में 10 तथा 4 शब्द क्रमशः विद्यार्थी तथा केले की संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो সংখ্যা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। তাহলে আমি বলতে পারি এটা সংখ্যাবাচক বিশেষণ। तो इस प्रकार कहा जा सकता है, মানে এই জায়গায় বলতে পারি আমরা, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषण शब्द, যে বিশেষণ শব্দের দ্বারা সংজ্ঞা এবং সর্বনামের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় তাকে संख्यावाचक विशेषण বলে। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे, वो संख्यावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। বুঝতে পারলে, যে বিশেষণ শব্দের দ্বারা সংখ্যা এবং সর্বনামের সংখ্যা সম্বন্ধে জানা যায় তাকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বলে। বোঝা গেল? अब जब हम बताएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, परिमाण भी बहुत आसान है। तो किसी बाजार में गए आप, कई चीज खरीदे, तो परिणाम हो गया। अब आप दुकान में गए, दुकानदार से पूछे भाई हमें अपने लिए एक 60 आपके पास बनवाना है, तो आप जरा बता दीजिए मेरा माप लेकर कि मैं कितना कापर, कितना जो मीटर का कपड़ा खरीद के आपके पास लेकर आऊं, जिससे कि आप मेरा एक अच्छे तरीके से जो शर्ट वगैरह है बना देना। ठीक है, तो इस दौरान भी आपको दर्जी के पास में फुट्टा लेकर, फुट्टा बोलते हैं, फीते के फुट्टा वाले हिंदी थे, तो इसको लेकर उनको मापना पड़ता है। तो कितना मीटर का कपड़ा आपको दिया जाए तो अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ देखो कि यहाँ पर जो दोनों उदाहरण हम आपके पास सामने रख रहे हैं, 2 लीटर दूध ले आओ। तो 2 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर दूध नहीं 2 लीटर, और 3 मीटर रिबन कट कर दे दीजिए। रिबन, ये रिबन जेंट्स लोग यूज नहीं करते हैं, लड़के लोग यूज नहीं करते, ये लड़की लोग यूज करते हैं। जो बाला में लगाते हैं लड़की लोग, जब विद्यालय में जाते हैं जो बच्चे, लड़कियां, वो बालों में लगाती है। ठीक है, तो 3 मीटर रिबन काट के दे दीजिए। तो रिबन मैं लेकर आ गया, और रिबन से बहुत सारी चीज बनाते भी है, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए नहीं है। तो 3 मीटर, तो ये है। तो इन वाक्य में 2 लीटर तथा 3 मीटर शब्द क्रमशः दूध तथा रिबन शब्दों की माप তোল का জ্ঞান करवा रहे हैं। তো এইখানে যে বাক্যটা দিলাম, সেখানে যে 2 লিটার এবং 3 মিটার, এই শব্দটা দ্বারা ক্রমশ দুধ তথা রিবন শব্দর যে মাপ সেটা করাচ্ছে, এবং একে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলা হয়। इस प्रकार कहा जा सकता है कि এইভাবে আমরা এখানে বলতে পারি যে जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप
तोल संबंधी जानकारी दे वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो क्या हो रहा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण तथा माप तोल संबंधी जानकारी दे वो परिमाणवाचक संज्ञा परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। মানে যেই বিশেষণ শব্দ সংজ্ঞা এবং সর্বনামের পরিমাণ অর্থাৎ মাপ তোল সম্বন্ধে জানকারি দেয় মানে জানায় তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলা হয়। বোঝা গেল এটা? বুঝতে পেরেছো? ठीक है। एबार देखो सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो डायरी मेरी है, इस बल्ले से ही सचिन ने शतक जमाया था। तो वो डायरी मेरी है, वो डायरी मेरी है और इस बल्ले से सचिन ने शतक जमाया था। इस से इस। तो इन वाक्य में आए सर्वनाम वो तथा इस क्रमशः डायरी तथा बल्ले संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, सर्वनाम है लेकिन इसका ये विशेषता करवा रही है, तो इसलिए इसका जो वाक्य होने से वो विशेषण के अंदर में आ जाता है। वैसे तो ये जो शब्द है वो सर्वनाम है, लेकिन वो जब एक वाक्य के साथ जुड़ के रहते हैं ना, तब उसको वो विशेषण समझा रहे हैं, हम उसको विशेषण समझ रहे हैं, तो इसलिए उसको हम बता सकते हैं कि भाई वो हो गया है। देखो कि देखो इन वाक्य में क्या है, जो सर्वनाम वह वो तथा इस ये जो क्रमशः डायरी तथा बल्ले संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं। এই যে বাক্যতে যে প্রয়োগ করা যে সর্বনামে যে ওয়া তথা ইস এগুলো কিন্তু ক্রমশ ডায়েরি তথা বল্লে ব্যাট এই সংজ্ঞা শব্দটাকে সংকেত করছে। এই কারণে অনন্তর আমরা বলতে পারবো সার্বনামিক এটাকে বিশেষণ বলা হয়। তো इसे इस रूप में भी कह सकते हैं, এই রূপেও বলা যেতে পারে। এবার আমরা যদি ডেফিনিশনে আসি, जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी ओर संकेत करते हैं, जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी ओर संकेत करते हैं तब वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। যখন কোনো সর্বনাম সংজ্ঞা শব্দের পূর্বে বসে সংকেত প্রদান করে তখন তাকে সার্বনামিক বিশেষণ বলা হয়। এটা বুঝতে পারলে ইন্টু? देखो 61 हो गया, तो 59 60 61 हो गया। अब जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अलग तो है, लेकिन वो भी हमको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बोला है विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना क्या है, कभी कभार कुछ शब्द आ जाते हैं हमारे सामने जो जाहिर सी बात है वो विशेषण या सॉरी वो सर्वनाम या संज्ञावाचक शब्द होते हैं, तो उस शब्दों को हमको विशेषण में रूपांतरित करना पड़ता है। तो विशेषण में रूपांतरित कैसे करें, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नियम या कौशल तो है नहीं, लेकिन कर दिया जाता है और करना भी हमको पड़ता है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है वो तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, उसको विशेषण करने के बाद ही ट्रांसफर करने के बाद ही वही रूप हम बिठा सकते हैं। तो देखो कैसे हो रहा है। तो कुछ शब्दों तो अपने आप ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में शब्दांश जोड़कर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। কিছু শব্দ নিজে থেকে বিশেষণ হয়ে যায়, আবার কিছু কিছু শব্দের সাথে কিছু শব্দ জুড়ে দিয়ে বিশেষণ করা হয়। आइए कुछ उदाहरण देखें, দেখা যাক তাহলে আমরা কিছু উদাহরণ দেখি। নামাক, নামাকা, নামাক শব্দটা যখন বিশেষণ করব তখন হয়ে যাচ্ছে নামকিন। লালাচ,
लालची, बनारस बनारसी, ज्ञान ज्ञानी, घर घरेलू, वार्षिक, प्यास प्यासा, रंग रंगीला या रंगीन, वह वैसा, जो जैसा, पढ़ना पराखू, मु- मु- लड़ना लड़ाकू, भारत भारतीय, सच सच्चा, प्यार प्यारा, भूख भूखा, खर्च खर्चीला, पाप पाकी पापी, सुख सुखी, नगर नगरीय, मूल मौलिक, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला। तो इस जो शब्द है, इस इस सभी शब्द का अर्थ मैं बता देता हूँ। नमक, नून, लालच, लोभी, बनारस, बनारस जगह के बारे में बता नहीं रहा है। ठीक है, बनारस पान भी हम समझ सकते हैं, बनारसी हम साड़ी का जो क्वालिटी होता है वो भी हम समझ सकते हैं। ज्ञान तो एक नॉलेजेबल जो पर्सन होता है, ज्ञान। घर, जो घर में रहते हैं, घर घरेलू। वर्ष, यार, जो होता है वार्षिक। प्यास प्यासा, जो आदमी का पानी नहीं मिला है उसको प्यासा बोल सकते हैं। रंग रंगीला, रंग तो कलर, रंगीला बोल सकते हैं। वो वैसा মানে ওই একটা কোন একজন ব্যক্তি ওই উনি তখন वो बता सकते हैं। जो जैसा মানে ওনার মতো, जो जैसा, ওনার মতো जैसा। পারা মানে পড়াশোনা করা। লিখ, লেখা যেটা রাইটিং। লড়া আজকে ফাইটিং इंग्लिश বলতে পারি, মারপিট করা যেটা। भारत इंडिया, जो भारतीय हो जाएगा। सच সত্যি কথা বলা। প্যার মানে ভালোবাসা। খুব মানে না খেয়ে থাকা যেটা। খরচ মানে যে বেশি খরচা করতে ভালোবাসে বা খরচা করা এরকম ব্যাপারটা। পাপ, গিল্টি ফিড, কোনো কারণবশত ভুল করেছে। সুখী, সুখ, হ্যাপি। नगर, ठीक है, टाउन। मूल, ठीक है, रूट, तो मूल। भीतर, ভেতরে, বাহার বাইরে, উপর উপরের দিকে, নিচে না নিচের দিকে। তো এরকম হবে। তো এই যে শব্দগুলো, এই শব্দগুলোর खाली ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, लेकिन इसका क्या करें हम लोग? इसको हम लोगों ने किया, विशेषण में परिवर्तन कर दिया, और ज्यादा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस इतना ही किया, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने जो ये अध्याय पढ़ा आज, विशेषण, इससे हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार देख लेते हैं। हमने सीखा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो हम लोग हमने ये सीखा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता মানে সংজ্ঞা এবং সর্বনামের যে বিশেষতা প্রদান করছে যে শব্দটা, তাকে আর বিশেষণ বলা হচ্ছে। একদম সঠিক কথা। আর जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। যেই শব্দর বিশেষতা বলা হয় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষণ चार प्रकार के होते हैं। বিশেষণ আবার चार রকমের হয়ে থাকে, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक वाचक। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं वो संज्ञावाचक विशेषण है। आज जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा की जानकारी देते हैं वो संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम संबंधी अर्थात पाप, तोल संबंधी जानकारी दे वो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और कुछ शब्द तो स्वतः ही विशेषण होते हैं, तो लेकिन कुछ शब्दों में शब्दांश जोड़कर विशेषण शब्दों को रचना की जाती है। तो कुछ ऐसी बात थी। तो ইন্টু অংশটা বুঝতে পারলে, ইন্টু। হুম। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, আমনেসিকাতে কি হয়, এনসিইআরটি বইতে আমনেসিকাটা এই কারণে দেওয়া থাকে যে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ি সেই চ্যাপ্টারটা পড়ে যে বিষয়গুলো থাকে তার একটা চিট সেটা দেওয়া থাকে, এছাড়া আর কিছুই নাই। হুম, আর আনসারটা দেওয়া থাকে। তো এখানে যে এক্সারসাইজটা 63 64 দেওয়া আছে, এখানে এমন কিছু নয়
बच्चे विशेषण से आप क्या समझते हो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विशेषण से आप क्या समझते हो? जैसी बात है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट जब करने की बात आती है तब दो उदाहरण दे देना। ये रंग बिरंगी तितली है, रंग बिरंगी के नीचे एक अंडरलाइन कर दो और ब्रैकेट में लिख दो गुण। वो बहुत लालची है, लालची के नीचे एक अंडरलाइन कर दो, ब्रैकेट में लिख दो दोष। क्या समझा जा रहा है? समझ, जो आपका कॉपी चेक करेगा और उनको समझ में अपने आप ही आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। विशेषण और विशेष्य में अंतर। अच्छा, विशेषण और विशेष्य में अंतर देखिए। विशेषण और विशेष्य में जो अंतर, यानी कि जो दुविधा है इन दोनों में, विशेष्य से आप क्या समझते हैं? जिस पद से हम किसी चीज का नाम के बारे में हमको पता चलता है उसको हम विशेष्य पद कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द उसको हम विशेषण कहलाते हैं। दोनों चीज तो एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। अब बता रहे हैं कि सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण की पहचान बताइए। सर्वनामिक विशेषण का पहचान हमको बताना है तो हमको उसका डेफिनेशन ही लिखना पड़ेगा। जब कोई सर्वनाम संज्ञा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले लगकर उनको और संकेत करते हैं तब उसको सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, उसको ऐसे बताना पड़ेगा। अब जब सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाए पर है, पहले में साहसी सैनिक में विशेष्य है। जाहिर सी बात है, साहसी सैनिक में विशेष्य है। अगर आपको सामने जो ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 में है साहसी, नंबर 2 में है सैनिक, नंबर 3 पे है वह दोनों, और इनमें से कोई नहीं। साहसी सैनिक में विशेष्य कौन है? सैनिक है। ठीक है। विशेषण, विशेषण कहलाते कौन है? 4 ऑप्शन दिया है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो क्या होगा? नंबर 1, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। अब लरना शब्द का विशेषण देखो। लरना शब्द का जो विशेषण होगा उसमें 4 ऑप्शन है। लड़ाई, लड़कपन, लड़ाकू और लड़। तीसरे ऑप्शन लड़ाकू होगा। अच्छा ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में बताते हैं, तो जो संज्ञा या सर्वनाम के, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में बताते हैं वो कहलाते हैं नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सर्वनामिक विशेषण। बहुत आसान सवाल है। तो क्या होगा? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। ठीक है जी। तो ओके। तो अब कहला रहा है विशेषण किसे कहते हैं। देखो विशेषण किसे कहते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। इसका उत्तर होगा संज्ञा या नाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बस हो गया इसका उत्तर। अब हाँ, विशेष्य किसे कहते हैं, उदाहरण से उत्तर कीजिए। देखो, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहलाते हैं। अगर उदाहरण से उत्तर कीजिए की बात करें, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम। ठीक है, राम का जारी है। ठीक है, राम विशेष्य हो गया। अब चौथी पे क्या है? चौथी पे है निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण और विशेषण को छांट कर लिखिए। छांट कर का मतलब क्या होता है? एक वाक्य आपके सामने दिया हुआ है और उस वाक्य से जो जो भी वाक्य है, दो या बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य होता है ना, तो उनमें से जो विशेषण, विशेषण के घर में आपको लिखना पड़ेगा, जो विशेष्य होगा विशेषण विशेष्य की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पहले है काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो बिल्ली जो होगा वो विशेषण में आ जाएगा और काली जो है वो विशेषण में आ जाएगा। ठीक है। अब आज क्लर्क सो रहा है, तो क्लर्क जो है विशेषण में आ जाएगा और आलसी जो है विशेषण में आ जाएगा। ठीक है। अब मूर्ख व्यक्ति से मित्रता हानिकारक होता है। देखो, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को हम मूर्ख व्यक्ति को पूरी तरीके से हम विशेषण में रख देंगे और हानिकारक जो है वो विशेषण में रख देंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, 1 किलो अंगूर ले आना, अंगूर को विशेषण में रखना है और 1 किलो को विशेषण में रखना है। पवित्र नदी का आदर करो, नदी विशेषण में आ जाएगा, पवित्रों को विशेषण में रख देंगे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई वीरंगना थी, तो रानी लक्ष्मी विशेषण में आ जाएगा,
हाँ एकदम सही बात। अब निम्न शब्दों से विशेषण बताइए। देखो ये तो आसानी है। देखो भारत का भारतीय करना पड़ेगा, भूख को भूखा करना पड़ेगा, नमक नमकीन होगा, सच सच्चाई होगा, नगर नगरीय होगा, भीतर भीतर भीतरे होगा, भीतर भीतरी होगा, प्यारा होगा, तब लिखना होगा, हाँ लिखित होगा, सॉरी लिखित होगा, पाप जो होगा पापी हो जाएगा, अज्ञान ज्ञानी हो जाएगा, वर्ष वर्षीय वार्षिक हो जाएगा, रंग रंगीन हो जाएगा। ठीक है, रंग रंगीन रंगीन हो जाएगा। अब देश देशीय हो जाएगा। देश देशीय हो जाएगा। ठीक है, देश देशीय हो जाएगा। और जो है उसके बाद शहर शहरिया शहरिया भी हो जाएगा। अब शहर शहरिया भी हो जाएगा। हाँ हाँ, अब वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंज वैसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको परिवर्तन करना है, एक एक शब्द दिया जाएगा, उसको बेशन में परिवर्तन करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसा दिया जा सकता है, कभी कभार दे सकते हैं। তো আজকে যেগুলো পড়ালাম সেগুলো বুঝতে পারা গেছে রিন্টু? এক্সারসাইজ বা টেক্সট কোনো সমস্যা? ঠিক আছে, বোঝা গেছে তাই তো? ক্রিয়েশন। আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে। তাহলে তো ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। হুম, হুম, হুম। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ফ্রাইডে তো পদই থাকবে আলোচনার মধ্যে বিষয়। কারণ এখন এছাড়া কিছু বলার মতো নেই, পদ ছাড়া আলোচনা করার মতো কিছু নেই। কারণ পদে এখন নেক্সট উইকেন্ড যখন ফ্রাইডে আলোচনা করবো ক্রিয়াপদ নিয়ে আলোচনা করবো। তো যাই হোক, আশা করছি বেসন পদ বুঝতে পেরেছো। তুমি পুরোনো গুলো দেখো, যখন কোনো ডাউট থাকবে কিছু সমস্যা থাকবে আমাকে বলবে। ঠিক আছে? ওকে, চলো ঠিক আছে। গুড নাইট। बाय। इसी के साथ आज का जो पढ़ाई खत्म होता है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।